دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص تھا عربی ادب میں جس کا نام تھا ابو زید سروجی. ابو زید سروجی تھا شاعر تھا, یہ شاعری کرتا تھا اور اس کے علاوہ لوگوں کو واضح نصیحت کیا کرتا تھا. لوگوں کو بتاتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا, برائی کے کام نہیں کرنے, اس کے بعد شراب نہیں پینی, زنا نہیں کرنا, چوری نہیں کرنی اور کرپشن نہیں کرنی. اب ہوا یہ کہ یہ شخص جب کہیں واضح نصیحت کرتا تو لوگوں پہ اتنا اثر ہوتا ہے اس کی باتوں کا کہ اس شخص کی باتیں سننے کے بعد سامنے والوں کی آنکھوں سے آنسوں کی ایک ندیاں بہنے لگتی اور لوگ رو رو کے نڈھال ہو جاتے, چونکہ باتوں میں اثر اتنا ہوتا تھا. اب اس کو ٹکر گئے ایک احسن صاحب چونکہ یہ کھوجی ہیں اور یہ کھوج لگانے میں ماہر ہے, تو اس کا ٹکراؤ ہو گیا احسن صاحب سے, اور احسن صاحب اس کے پیچھے پڑ کے ہاتھ اور منہ سب کچھ دھو گئے. اچھا ہوا یہ کہ یہ جو ابو زید سروجی تھا یہ واضح نصیحت کرنے کے بعد جو ہے یہ چل پڑا گھر کی جانب. چلتے پیچھے احسن صاحب بھی اس کے ہو لیے. یہ ایک غار کے دہانے پہ جا پہنچا اور غار سے اندر چلا گیا, پیچھے احسن صاحب بھی لگا کے چھلانگ سیدھے اندر. جب اندر گئے احسن صاحب تو دیکھا کہ ابو زید سروجی جو ہے اس کے غار کے اندر بڑا کچھ موجود ہے. ایک طرف جو ہے وہ مرغے مسلم اور طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے روسٹ اور فلاں پڑا ہوا ہے, اور دوسری طرف جناب شراب کا ایک مٹکا ہے, اور تیسری طرف ایک خوب رو حسین نوجوان لڑکا وہاں موجود ہے. یہ سب دیکھنے کے بعد احسن کی تو وہ طوطیاں اڑ گئی, سب کچھ اڑ گیا. تو بھائی یہ کیا ہے, باہر تو یہ بندہ اس طرح کا ہے اور اندر, لیکن سوچا کہ نہیں بھائی یہ تو ویسے کسی کا ہوگا, لوگوں کو یہ ہٹانے آیا ہوگا, جو بندہ یہاں پینے آئے گا یہ اس کو یہ کہہ رہا ہوگا کہ مت پینا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیا, اس نے سب سے پہلے جا کے سیر ہو کے وہ کھانا کھایا. اس کے بعد اس نے جا کے اس مٹکے کے پاس جو ہے جام اٹھایا اور وہ گٹاگٹ جو ہے اس نے اس کے بعد وہ گیا اس خوبصورت لڑکے کے پاس اور جا کے اس کے ساتھ جو ہے جمع کرنے لگا. یہ سب کرنے کے بعد اس نے ابو زید سروجی نے جو ہے وہ پاؤں پھیلائے, ٹانگیں پھیلائی اور سو گیا. ایسی ہی کہانی یاد آ گئی تو میں نے چلے آپ کو سنا دیتے. پاکستانی میڈیا میں اسی طرح کے ایک ابو زید سروجی صاحب موجود ہیں جن کا ذکر میں آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں. نام ہے ان کا حامد میر. حامد میر ایکچولی یہ حامد میر سے ماخوذ ہے, اور یہ حامد میر کو حامد میر بنانے کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ شعراء دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر ایک جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جناب کون سے والے, جو آورد شعراء ہوتے ہیں, جو خود سے لکھتے ہیں, جو اپنی کریٹیوٹی سے جو ہے شاعری کرتے ہیں. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ آمدی شعراء ہوتے ہیں جن کو اوپر سے آمد ہوتی ہے, جو خود سے نہیں لکھ سکتے بلکہ وہ ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان کو اوپر سے شاعری نازل ہوتی ہے. تو اقبال جس کی ایک بڑی مثال. اب یہ جو حامد میر صاحب ہیں ان کو بھی بہت ساری چیزوں کی جو ہے وہ آمد ہوتی ہے, پہلے سے انہیں خبروں کا پتہ ہوتا ہے, ان کو اندر کی خبروں کا اور ان کو جو ہے وہ سیکرٹس کا سب معلوم ہوتا ہے, اور یہ بیٹھ کے ٹائی کوٹ پہن کے جناب پہلے ہی بتا دیتے ہیں. اب صحافی کیا ہوتا ہے, صحافی کی تعریف, صحافی وہ شخص ہوتا ہے, صحافی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو حقائق بیان کرے, سچائی کا ساتھ دے اور اپنی ڈیوٹی کو, اپنے فرض کو پہلے رکھے. اور وہ صحافی جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے, کسی گروہ سے, کسی فرد واحد سے منسلک نہیں ہوتا, اور کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتا, کسی بھی اس طرح کی چیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوتا. وہ شخص صحافی ہوتا ہے. لیکن یہ وہ کون صحافی ہوتا ہے, جو چھوٹا صحافی ہوتا ہے, جو ایماندار صحافی ہوتا ہے, جو اچھا صحافی ہوتا ہے. حامد میر کے لیے یہ چیز نہیں ہے, اس کے اوپر یہ تعریف بیٹھتی نہیں ہے. حامد میر کون ہوتا ہے, حامد میر وہ ہوتا ہے جو نونو لیگ کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو لے کر کے چلتا ہے, جو اس کے حق میں ٹویٹس کرتا ہے, جو اس کی چیزوں کو دنیا کے سامنے رکھتا ہے, اور جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور اس کے بدلے میں نونو لیگ جو ہے اور باؤجی جو ہے, یہ نونو شریف صاحب جو ہے, یہ اس کو بدلے میں کیا کرتے ہیں جی, فائنینشلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. سپورٹ. حامد میر صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے جو صحافت ہے اس کو گھر کی لونڈیاں بنا کے رکھا ہوا ہے, اور پی ٹی ایم کو اور یہ جو اپوزیشن ہے اس کے نیریٹو کو تو ایسے لے کر کے چل رہے ہیں جیسے ان کے ابا نے جاتے ہوئے دنیا سے یہ کہا تھا, بیٹا یہ میری آخری نصیحت ہے, پی ڈی ایم کو اور نواز شریف کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رکھنا جس طرح سے تم نے اپنی جیب ان کے سینے سے لگائی ہوئی ہے. اچھا تو بات کر رہے تھے ان کے بارے میں. 29 اکتوبر 2020 کو کیپٹل ٹاک کا ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں حامد میر صاحب نے بلایا ہوا تھا ان کو, محسن نواز رانجھا صاحب کو بلایا ہوا تھا جو نون لیگ سے, اور دوسری طرف انہوں نے بلا رکھا تھا پی ٹی آئی سے ولید اقبال صاحب کو جو کہ علامہ اقبال کے پوتے ہیں. سوال اچھالا گیا, ایک سوال اچھالا گیا. سوال کیا تھا, سوال یہ تھا کہ کیا ایاز صادق کو معافی مانگنی چاہیے, کیا ایاز صادق کو معافی مانگنی چاہیے. یہ کیسا سوال ہے او بھائی, یہ کیسا سوال ہے, یہ کوئی سوال ہے. ایک بندہ تمہارے ماں کے اوپر بھونک رہا ہے, تمہارے باپ کے اوپر بھونک رہا ہے, تمہارے ملک کے اوپر بھونک رہا ہے,
है। एक बंदे ने तारीख मस्ख करके रख दी तुम्हारी। ये जो हमारी उस वक्त बड़ी हमने ना हिम्मत के साथ पूरी दुनिया को हमने बताया था कि हमने जो है ये जो हमारी जीत है, और हमने सबको बताया था वाकई में पाकिस्तान की जीत थी, उस जीत को हार में तब्दील कर दिया तेल लगा के, पता भी नहीं चलने दिया किसी को। अरे भाई ऐसे कैसे होता है यार, मतलब हमारे को चुतिया समझ रखा है क्या? ऐसे ऑन द फ्लोर खड़े होके तुम ये कह रहे हो कि भाई ये टांगें कांप रही थी और ये पसीने छूटे हुए थे, ये सब किसको, कब, कौन, कहाँ? फर्ज करो हमने जो है, जैसे तुम कह रहे हो सरदार अयाज सादिक साहब ने जैसे ये कहा कि प्रेशर था हम पे और इस वजह से हमने जो है उसको वापस किया। किसको? ये नहीं था वो मुछड़, क्या नाम था उसका भाई, वो अपना यार वो नंदन, अभी नंदन, ये इसको जो है हम लोगों ने वापस किया था प्रेशर की वजह से। तो एक बात बताओ अयाज सादिक साहब, अहमद मीर साहब और नवाज शरीफ साहब, मुझे एक बात बताओ, मुझे ये बताओ भाई कि प्रेशर से हम कलभूषण को क्यों नहीं वापस कर रहे? उसका भी तो प्रेशर है भाई। प्रेशर से हम अमेरिका को मीर शकील, नहीं मीर शकील तो अपना अमेरिका का ही है, तो हम प्रेशर से इसको जो है वो शकील अफरीदी को वापस क्यों नहीं कर रहे? प्रेशर तो उसका भी है, अमेरिका तो उसको भी मांग रहे हैं, हम वापस क्यों नहीं कर रहे? अबे मतलब किसको चूतिया बना रहे हो, हमारे को बना रहे हो भाई। ऐसे मत करो यार, ऐसे मतलब तुम लोग बैठे हुए हो उधर पेंट कोट पहन के, जो तुम्हारे दिल में आ रहा है बकी जा रहे हो, हम लोग तो बैठ के सुन रहे हैं। आमन मीर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, ये हक पे बात करते भाई। कौन सा हक, कैसा हक? ये सवाल बनता ही नहीं है, ये सवाल नहीं है भाई। दिस इज नॉट अ फेयर क्वेश्चन, ये सही सवाल नहीं है। माफी मांगनी चाहिए, क्या मतलब है? उसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्यों नहीं माफी मांग रहा, कब माफी मांगेगा? इस तरह के सवाल करते मैं तुम्हें कहता वाह अहमद मीर वाह। इस सवाल के ऊपर छोटा सा गिफ्ट है अहमद मीर साहब आपके लिए, कबूल कीजिएगा। गिफ्ट क्या है? गिफ्ट ये है अहमद मीर साहब, आपने जो सवाल किया कि अयाज सादिक को मुल्क को बदनाम करने को, तारीख मस्ख करने को, हमारे ऊपर दब्बा लगाने को और इंडिया को खुश करने के लिए ये जो बयान दिया, इसके ऊपर जो गिफ्ट है, तेरी पूरी सहाफत को, तेरी शक्ल पे मेरी तरफ से लानत है। इस सवाल के जवाब में वलीद इकबाल साहब ने कहा कि जो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहे हैं और आर्मी के खिलाफ और हुकूमतों के खिलाफ और ये सब जो वो बातें करी जा रहे हैं, इसको जो है रुकना चाहिए, इस पर भी माफी होनी चाहिए। उसके अलावा जो फ्लोर पे खड़े होकर, जो पार्लियामेंट में खड़े होकर बातें हो रही, इस पे भी माफी मांगनी चाहिए और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जितना भी आ रहा है, इन सारी चीज़ों पर माफी होनी चाहिए। हमें मीर साहब ने एक और सवाल उछाला रांझा की तरफ, मोहसिन नवाज रांझा साहब की तरफ उछालना चाहिए था। अच्छा सवाल किया उन्होंने कहा जी आप क्या कहेंगे इस बारे में, माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, मोहसिन नवाज रांझा साहब ने ये कहा चूंकि हुकूमत हमें डिक्टेट कर रही है, हमें प्रोवोक कर रही है, हमें उकसा रही है, इसलिए हम इस तरह के बयान दे रहे हैं। ओ भाई ये कैसी बात कर दी तुमने भाई, ऐसे नहीं होता यार। तुम अपोजिशन हो, तुमने 3 बार हुकूमत की है पाकिस्तान पे और तुम्हें कोई प्रोवोक करेगा, तुम्हें कोई उकसाएगा, तुम पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दोगे? नहीं भाई ऐसे मत करो यार, खुदा का वास्ता यार, कैसी बातें कर रहे हो भाई। तो यार अगर तुम्हें प्रोवोक चलो किया जा रहा है, मान लेते हैं, तुम बच्चे हो भाई, तुम अलिफ को डंडा कह रहे हो, तुम रोटी को नोनी कहते हो, वो तुम्हें पता ही नहीं, तुम पानी पीते हो यहाँ से बाहर निकल आता है, तुम्हें अभी भी मुंह से वो ले आती हैं। क्या बातें कर रहे हो यार, ये कैसे करते हो भाई? इसके ऊपर होना ये चाहिए था कि हामिद मीर साहब वहां पे सहाफत का, आजाद सहाफत का डंका बजाते हुए वहां पे ये सवाल ठोकते कि भाई कैसे तुम ये कह रहे हो मोहसिन नवाज रांझा, जबकि तुमने 3 बार हुकूमत कर चुकी है तुम्हारी पार्टी, तुम कैसे ये बात कर रहे हो? तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए। वहां पे सवाल होना चाहिए था कि ये बात चलती, ये बात मानने की है ही नहीं कि प्रोवोक हो रहे हो तुम लोग बच्चे तो नहीं हो। नहीं, ये सवाल नहीं हुआ, ये सवाल नहीं हुआ। क्यों? ये सवाल इसलिए नहीं हुआ कि सवाल ये नून लीग के खिलाफ है, सवाल ये नून लीग के नैरेटिव के बाबूजी के खिलाफ है ना। ये हमारे बाबूजी नहीं है, अहमद मीर साहब के बाबूजी, बड़े बाबूजी, वो जिनके ऊपर से बाल लंबे बाल हैं, गंजे से हैं वो, हाँ वो जिनके लंबे बाल हैं, थोड़े से गंजे हैं वो। तो ये है कि उनकी तरफ ये उनके नैरेटिव को नुकसान पहुंचता, इसलिए ये सवाल नहीं हुआ। सहाफी के लिए जरूरी है कि वो पार्शियल ना हो, वो किसी से स्पॉन्सर्ड ना हो, किसी को बैकअप ना दे रहा हो। लेकिन नहीं, ये दूसरे सहाफियों के लिए है, मुर्शिद के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हजरत जो है ये इन चीज़ों से मुबर्रा है, मुबर्रा, इन पे ये रोल जो है वो लागू ही नहीं होता। और एक और बात, बड़ी कमाल की बात है, वो ये कि ये हमारा एक फौज का जवान अगर वो बॉर्डर पे एक गोली लग जाती है बेचारा शहीद हो जाता है, अस्पताल तक नहीं। ये जो हमारे लफाफी साहब हैं, सॉरी इनका क्या नाम है, भूल जाता हूँ ना मैं, बड़े नाम अक्सर दिमाग से निकल जाते हैं। ये जो हमारे अहमद मीर साहब हैं, इनको 9 गोलियां लग गई। 9 गोलियां लगने के बाद 45 मिनट का सफर करने के बाद अस्पताल पहुंच गए, अब तक जिंदा है, कुछ भी नहीं हुआ भाई। और एक गोली लगने से हमारा जवान मर जाता है। ओ भाई मतलब क्या यार, कुछ भी ये जो है ये पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों में जो रिलीज में आती थी उनमें जो है शान होता था, उसको भी 8-9 गोलियां लगती थी, फिर वो खड़ा हो जाता था। यही हालत है हुजूर की भी, इनको भी जनाब 9 गोलियां लग गई, अब तक जिंदा है। ये सहाफत पे हमने
बात करें, हमने सहाफत के लिए गोलियां खाई हैं। ओ भाई गोलियां कॉन्स्टॉन की गोलियां थी मेरे ख्याल में, या पैरासीटामोल था, इस वजह से तुम जिंदा हो। ओ भाई ऐसे नहीं होता यार जैसे तुम कर रहे हो भाई, ये किसको तुम चूरन बेच रहे हो भाई, कौन सी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को नहीं बेच सकते यार। और एक सवाल है कि यार इस बंदे को कोई पूछता क्यों नहीं है, ये अकाउंटेबल क्यों नहीं है, इससे पूछा क्यों नहीं? एजेंसीज हैं, बाकी सारे अदारे मौजूद हैं, कैमरा है, सब कुछ है, पूछता तो ना पूछने की वजह ये है कि इस बंदे को आप पूछ नहीं सकते भाई। ये एक ऐसी सफेद गाय है, ऐसी बरगजीदा और पाक गाय है जिसके ऊपर हाथ डालने से पूरी सहाफत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, सहाफत कैद हो जाएगी, पाकिस्तान के सहाफी बर्बाद, सारी सहाफी बरादरी के ऊपर एक बंदे के छेड़ने से। वो कैसे? वो ऐसे देखें, दो चीजें बड़ी पैरेलल है, एक दूसरे से मिल रही हैं। शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप पकड़ें, इसकी दो नंबरियां आप पकड़ें, इसके आप ये पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया और कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर कोई अदारा हाथ डाल रहा है, हुकूमत हाथ डाल रही है, कोई भी इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट कोई भी बोल रहा है, तो क्या होता है? जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है भाई। और ये वो बंदा है, ये जो हमारे साहब हैं, मीडिया वाले साहब, इनके लिए अगर आप कुछ बोलेंगे, या इनको बोलने को छोड़ें, इन्हें आप आई चैलेंज यू, इस बंदे को आप कहीं अशारे पे कोई ट्रैफिक वार्डन रोक के दिखाए, अगर हमारी सहाफत खतरे में ना पड़ गई और हमारी सहाफत जो है वो कैद ना हो गई, आप उसे पूछ लीजिएगा। 29 अक्टूबर वाले प्रोग्राम में हम मीर साहब ने ये भी कहा कि ये शिबली फराज साहब जो उंगली उठा उठा के कह रहे हैं कि सबसे कम सजा अयाज सादिक की ये है कि वो कौम से माफी मांगे, तो ये एक्चुअली जो है वो महंगाई से अपनी वो नजरें चुरा रहे हैं और वो हकायक पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि उंगली अगर उठा रहा है इमरान खान यूं करके, वो भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, और इधर ये जो उठा रहा है शिबली फराज साहब ने जो उंगली उठाई है, इसकी भी प्रॉब्लम। मतलब मुझे तो ये लग रहा है भाई कि बचपन में उंगली नुमा किसी चीज से इस भाई को कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब होता है ना कभी वो कुछ भी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि उंगली इधर नहीं उठ रही, उंगली नवाज शरीफ पे उठ रही है, और वो उंगली इधर अहमद मीर पे उठ रही है। नहीं वो नवाज शरीफ पे उठ रही है, अहमद मीर पे उठ रही है, नहीं वो अहमद मीर पे उठ रही है। एक ही बात है, चूंकि अगर उस पे उठ रही है तो इसकी जेब पे उठ रही है, और अगर इसकी जेब पे उठ रही है तो नवाज शरीफ पे उठ रही है। मतलब इन दोनों का चूली दामन का साथ है, ये एक दूसरे के लिए लैला मजनू बन चुके हैं इस टाइम। हमको ये चीज नहीं पसंद कि कोई हमारे वो जो है ना बड़े वाले नोनो शरीफ अल मारूफ, पापा नहीं बोलूंगा मैं, गलत है, नहीं कहना चाहिए किसी को इस तरह से, वो उसका पापा नहीं है, अलबत्ता कहते हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो नहीं है, किसी के बयानी को लेकर के चलना बाप तो नहीं हो जाता कोई इस तरह से। तो वो जो कह रहे हैं कि उंगली मत उठाओ भाई अपोजिशन पे, अबे तुम्हारे मुल्क के साथ वो ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उस पे उंगलियां क्या सब कुछ उठा रहे हैं, तुम्हारे मुल्क पे कपड़े उतार दिए तुम्हारे मुल्क के इन लोगों ने, और तुम कह रहे हो उंगली क्यों उठा रहे हो भाई। दिल तो करता है कि एक बार फिर तुम्हें कोई गिफ्ट दूं, लेकिन छोड़ो, बार बार गिफ्ट देना अच्छा नहीं लगता, हालांकि तुम डिजर्व करते हो। अच्छा, ऐसे सहाफी जो है ना, नवाज शरीफ से जब उनको थैली मिलती है ना, लिफाफा, तो वो लेने के बाद कहते हैं काश आप हमारे पापा होते। मतलब ये है, अब ऐसे थोड़ा ये वही पागल हो गए हो क्या। अच्छा, लिफाफों का बड़ा जो है वो इन्फ्लुएंस रहा है हमारी सहाफत में। अगली बात ये जो इसने कही हामिद मीर ने, कि जो अयाज सादिक ने बयान दिया उनके अल्फाज का चुनाव गलत था, यानी कि जो मुल्क के खिलाफ बयान आया था पार्लियामेंट से उनका, वो चुनाव अल्फाज का गलत था। ओ भाई, अल्फाज का चुनाव गलत था तो मतलब वो बात ठीक थी, यानी कि वो बात ठीक कर रहा था और उसके अल्फाज का चुनाव गलत था। ओ यार, तुम कैसे लोग हो यार, क्यों हो तुम इस पाकिस्तान में? अगर तुम इस पाकिस्तान के हक में नहीं बोल सकते, अगर तुम इस पाकिस्तान का खा के और जिसमें खा रहे हो उसी में तुम कर रहे हो वापस, तो फिर तुम क्यों हो यहाँ पे? मतलब क्या यार, ऐसे लोग, कैसे लोग।